न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की तमाम बड़ी खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में चुनाव की घोषणा। टोक की पिकनिक पर गए 8 लोगों की मौत। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध झोपड़पट्टियों पर कार्रवाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में चुनाव की घोषणा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस द्वारा अप्रैल 2026 में आम चुनाव की घोषणा के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लेकिन इस घोषणा को लेकर बांग्लादेश स्टूडेंट लीग, जो प्रतिनिधि बंद बांग्लादेश आवामी लीग का छात्र इकाई है, के अध्यक्ष सुदाम हुसैन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि ये एक राज्य प्रायोजित नाटक है। उनका आरोप है कि अंतरिम सरकार इस चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने निजी हितों और एजेंडों के साधने के लिए कर रही है। सुदाम हुसैन ने आगे कहा, उन्होंने बांग्लादेश आवामी लीग का प्रतिबद्ध लगा दिया और अब देश के लोगों एक अवैध लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे हैं, जो वास्तव में उनकी आवाज बन सके। उन्होंने मौजूदा सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान शासकों का स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है। बयान के अंत में उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर हमें बांग्लादेश में लोकतंत्र को बहाल करना है तो हमारे पास इस मौजूदा फांसीवादी शासन को हटाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। Bangladesh. Chief Advisor has announced that national elections will be held next year. So, do you believe that the elections without the participation of the Awami League can truly be considered meaningful or credible? No, there is, that election is not priority of this government actually. This is just a state-sponsored drama. Just by they will use this for their own purpose actually, because they banned Bangladesh Awami League. Bangladesh holds all sort of fascist characteristics. There is no chance of the people have their own choices. So the election is a first. I think the election is. If you are saying about election, you are banning another political parties. And if you see the current situation in Bangladesh, as per the report of Human Rights Watch, more than 350,000 people has been arrested and took to the prison in last 10 months. In last month, in every day, more than 1,500 people got arrested and had been taken to the prison. So this is the actual scenario. And I think Bangladesh, the people of Bangladesh, they are waiting for the people's representative. They are waiting for the constitutional rule. They are waiting for the democratic representative to govern the country. So, if that considering the current context, if you are saying that you are going to do elections and it is without Awami League, it is actually an omelette without egg, or you are you are staging the famous drama of Shakespeare, Hamlet, without the Prince of Denmark actually. And also you are not liable to the people's right, to the people's voting rights, people's civil liberties, people political rights. And you are saying about election, that thing, those things, reforms. It is actually that just to divert the concentration of the people, I think. And if you think also the other matters, that an election, if you want to have an election, the government must be capable of doing that. This is such a government which have no control over the law and order situation. We see Bangladesh is totally lawless country right now. Women cannot play football. They are getting threatened by the fundamental groups. They cannot give the security of the women. They cannot give the security of the minority. They cannot give the security of the opposing voices. And they are saying that they will do elections. So I think this is actually not possible.
and for restoring democracy in Bangladesh, we have no other options other than the removal of this current fascist regime, and this is the priority of the government. Another thing is, that what is what are the works of the current government. If you see the works of the chief interim government, Professor Yunus, that he himself declared himself as the interim government chief, and that the ignoring all sort of ideals of conflict of interest. He is the chief of the government, and he himself exempted from the cases that are against him. He, that he himself exempted more than 666 crores taka, which was 660 crores taka tax exemption. He got himself by that, and he gives himself to his Grameen digital wallet for digital banking. He himself that give license to his universities, to his new business models. He is representing Bangladesh, and he is doing business with Sterling. So whenever he visited the other countries, he never played a role of the government chief, rather than he played the role of a executive officer of his private businesses. That the previously Grameen Bank and other banks have 30% government share. He curtailed it, and right now Bangladesh, the government has 10% share, and he himself is the interim government chief. So actually he is using the state machineries for his own personal agenda. Restoring democracy is not his priority. Election is not his priority, and he himself. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टोंक में पिकनिक पर गए 8 लोगों की मौत। राजस्थान के टोंक जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। जयपुर से पिकनिक मनाने आए कुछ लोग हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा, ये बहुत दुखद घटना है। ये लोग जयपुर से यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में फिसल गए और फिर 8 लोगों की जान चली गई। सचिन पायलट ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की और साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी जगहों पर तकनीकी टीम भेजकर सर्वे कराया जाए, खतरनाक इलाकों को चिन्हित किया जाए और वहां पर स्थानीय चौकियां बनाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। बड़ा दुखद हादसा हुआ। ये 8 लोग जयपुर से यहाँ पर आए थे पिकनिक मनाने के लिए और तैरने के लिए। अब दुख इस बात का है कि ये 8 दोस्त भी थे, 11 लोग जो थे आपस में रिश्तेदारी भी थी, और क्योंकि इलाका अनजान था, उनको ना तो अनुभव था ना एहसास था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं तैरने के लिए या पिकनिक मनाने के लिए, तो एक दूसरे को बचाने में भी आपस में फिसल गए और फंस गए, और इसी वजह से 8 लोगों की मौत हुई। जिनकी बॉडीज को रिकवर किया गया है। 3 लोग जो समय खाना पका रहे थे, वो बाहर थे, वो बच गए। हम सबको बड़ा दुख है, और एक साथ इतने लोगों का जाना ये बहुत ही दुखदायी घटना है। मैंने प्रशासन से बात की है, और जो प्रावधान है, जो नियम है, उसके अधिकृत जो कुछ भी मदद हो सकती है परिजनों की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आमदनी वाले लोग नहीं थे और मेहनतकश लोग थे, कमाने वाले लोग थे, तो उनके परिवार वालों को जो आर्थिक मदद हो सकती है, जो माँ योजना है या कोई और योजना है, उसके तहत जिला कलेक्टर और प्रशासन ने वो कार्रवाई चालू कर दी है। और 8 जो शव हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनको अलग अलग एम्बुलेंसेज में हम वापस जयपुर भिजवा रहे हैं। उनके साथ एक पुलिस का व्यक्ति भी जा रहा है, एक रेवेन्यू का व्यक्ति भी जा रहा है। उनके जो हम उनके इस दुख की घड़ी में राहत दे सकते हैं, वो प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इस प्रकार की जो घटना हो रही है, कैसे रोका जाए। मैंने अभी इनको निवेदन किया है कि पूरा जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक टेक्निकल टीम भेजकर ऑडिट करें। कौन से ऐसे पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चिकनी मिट्टी है, दलदल टाइप हो जाता है, और भंवर में फंस के बहाव में आके लोग बह जाते हैं। तो इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए अगर चेक पॉइंट्स लगाने हैं, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, नाकाबंदी करनी है, कॉर्डन ऑफ करना है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, एक टेक्निकल टीम भेजकर सर्वे करा लेंगे
और जितना संभव है, क्योंकि पूरी नदी के आसपास के इलाके को बंद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग चाहे चाकू बांध है चाहे यहाँ पर है, लोग बहुत आ जाते हैं, लेकिन सच में इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोग जो एक दूसरे को जानते हों, दोस्त हों, परिचित हों, रिश्तेदार हों, उनका जाना बड़ा दुखद है। मैं उनके परिजनों को अपनी संवेदना देता हूँ और हम सब उनके घर वालों को जितनी संभव मदद हो सकती है वो अमीन जी जिनके क्षेत्र के लोग हैं और बाकी शहर के जो लोग हैं हम सब मदद करेंगे। और यहाँ के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमें और जागरूक रहना होगा। बाहर से वो लोग आते हैं जो इलाके को जानते नहीं हैं, वो हादसे का शिकार ना हो, इसके लिए जो कुछ भी संभव होगा पुलिस भी करेगी, प्रशासन भी करेगा और हम लोग भी करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि इतना जो नौजवान जो मौतें हुई हैं मैं समझ सकता हूँ, दिल दहलाने वाली हैं और मेरी पूरी संवेदना उन परिजनों के साथ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध झोपड़पट्टियों पर कार्रवाई। दिल्ली के काजी इलाके में स्थित भूमिहीन कैंप में आज फिर से डीडीए का तोड़फोड़ अभियान जारी है। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने इससे पहले कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कहा गया था कि झोपड़पट्टी अवैध है और उन्हें निर्धारित समय पर सीमा के भीतर खाली कर दिया जाएगा। प्रतिनिधिकरण ने ये भी स्पष्ट किया कि ये कदम उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में उठाया गया है, जिसका उद्देश्य अवैध अतिक्रमण हटाना है। लेकिन इस कार्रवाई से वहां रहने वाले सैकड़ों परिवार पर संकट आ गया है। कई लोग वहां वर्षों से रह रहे हैं और वहां अब वे बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास के बेघर होने का कगार पर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी से मिले 5 देशों की यात्रा से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधि। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। ये प्रतिनिधि मंडल हाल ही में 5 देशों की यात्रा पूरी कर भारत लौटा है। इस मुलाकात के बाद जेडीयू सांसद और प्रतिनिधि मंडल ने नेता संजय कुमार झा ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमने प्रधानमंत्री को अपने फीडबैक की रिपोर्ट सौंपी। साथ ही हमारे सभी साथियों ने अपने अनुभव साझा किए कि विदेशों में भारत को लेकर कैसी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। उन्होंने बताया कि दुनिया भारत को अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही है और ये गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल से व्यक्तिगत तौर पर सुझाव मांगे और सभी की बातों को गंभीरता और धैर्य से सुना। संजय झा ने ये भी कहा कि जब हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्पष्ट किया कि परमाणु ब्लैकमेल का काम नहीं करेगा, तो प्रधानमंत्री ने हर पल का सहल संज्ञान लिया और सराहना की। ये मुलाकात न सिर्फ कूटनीति उपलब्धियों की साझा समीक्षा थी, बल्कि देश की विदेश नीति को लेकर एक सर्वदलीय संवाद का भी प्रतीक है रही। हिट कर रहे थे क्या अपने अपने हिसाब से जो हम लोग का फीडबैक था, एक रिपोर्ट भी दिया है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के यहाँ, और साथ में जितने हमारे साथी थे सब लोगों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया कि हम लोगों ने ये बात रखा, वहाँ से जो रिस्पांस था या किस तरह लोग दुनिया में चीज़ों को देखते हैं, या भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की हो गई तो दुनिया के नज़र में कितनी बड़ी बात ये हो रही है, या आगे और क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा भी सबसे कि आगे और इसमें आप लोगों का क्या सुझाव है, या सबसे बड़ी बात थी कि हमको लगता है कि मैक्सिमम टाइम वो सबकी बात सुन रहे थे, सबको समय दिया अपनी बात रखने के लिए और बिल्कुल पेशेंटली सबकी बात सुने, सबसे बड़ी बात ये थी। और एक लार्जर जो एक ये है कि जो क्योंकि ये प्रॉब्लम बिहार देश का है वो सही है, लेकिन कोई भी एरिया अछूता नहीं रहेगा। कोई कंट्री ये कहे कि वो बच जाएगा, ये संभव नहीं है। ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है बहुत लोगों के उसमें, तो इससे तो वेस्ट भी अफेक्टेड है, या अमेरिका पहले अफेक्टेड हुआ, या दुनिया का अन्य एरिया भी अफेक्टेड होगा। इवन जो मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ भी डी रेडिकलाइज करने का कैंपेन चल रहा है। तो ये सारी बात उनके नॉलेज में जो हम लोगों ने फर्स्ट हैंड अनुभव किया, वो सारी बात उनके जानकारी में हम लोगों ने दिया। प्रधानमंत्री जी इन 2 बात को लेकर के, एक तो जो उन्होंने भेजा था ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसका मतलब पूरा देश एक वॉइस में बात कर रहा था आतंकवाद के खिलाफ, तो ये उनके जानकारी में ये आया। और दूसरा जो है आपको जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि
अब जो इंडिया का स्टैंड है खास करके आतंकवाद के खिलाफ, उसमें जीरो टॉलरेंस जो नीति है, सिर्फ कहने में नहीं प्रैक्टिस में ये बात दुनिया में जाके हम लोगों ने जो बताई, या न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, तो सारी बात उन्होंने सुनी सबकी, और एक तरह से सबको के काम को एक तरह से अप्रिशिएट भी किया कि नहीं जिस तरह से बात रखी गई है उनको भी अपना फीडबैक सिस्टम होगा, वो ठीक रहा। अभी जबकि एक तरह से ब्रीफिंग डीब्रीफिंग हो गई, आपको लगता है कि जो उद्देश्य था वो फुलफिल हुआ, वो पूरा हुआ? मुझे लगता है बिल्कुल उद्देश्य फुलफिल हुआ कि हम लोग झेल रहे थे और दुनिया में अलग अलग नैरेटिव चलता रहता है, तो एक सारे पार्लियामेंट इनका जाना, अक्रॉस कंट्री हर एक एरिया के लोग थे, अक्रॉस पार्टी लाइन, तो इस तरह से जा करके जब हम लोगों ने वहाँ के थिंक टैंक से बात किया, वहाँ के पॉलिटिकल लोगों से बात किया, वहाँ के मीडिया से इंटरेक्ट किया, वहाँ जो अन्य देशों के एम्बेसडर से उनसे इंटरेक्ट किया, वहाँ के डायस्पोरा से इंटरेक्ट किया, तो इतना वाइड रेंज था इंटरेक्शन का, तो डेफिनेटली भारत का ये जो आउटरीच था इंडिया के तरफ से, तो डेफिनेटली इंडिया का पर्सपेक्टिव सोच क्या चल रहा है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे ढंग से उस कंट्री में गया, और ये भी हुआ कि आगे इसको कंटिन्यू भी रखना है इस चीज़ को, तो ये एक बड़ा मैसेज दुनिया भर में गया। और आतंकवाद सब देश झेल रहा है या झेलेगा, अगर इसको कोई सोचेगा कि एक कंट्री का प्रॉब्लम है, तो एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक ना एक झेलना, इसलिए ग्लोबली इस पर सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, तो ये बड़ा एक आउटरीच और सक्सेसफुल रहा उसमें। कल राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्री ने एक बात हम कह सकते हैं, तो आपको लगता है कि पूरा देश, देखिए हमको नहीं लगता है कि दोनों कंट्री को इक्वेट भी चर्चा भी करना चाहिए। पाकिस्तान तो हम लोग के रडार में भी नहीं है, वो तो साइड से, हम लोग को क्या लेना देना है पाकिस्तान से। आज इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अभी रिपोर्ट आया है ना कि 5% गरीबी रेखा में गरीबी बच गया है, अब पाकिस्तान का भी रिपोर्ट आया है कितना बढ़ गया। ये तो स्थिति है दोनों, क्या क्यों कंपेयर करना उससे? हमको नहीं लगता कोई कंपेयर करने वाला मैंने बात भी होना चाहिए। हम लोगों का को ग्रोथ, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जीवन स्तर बदलना, आगे बढ़ना, गरीबी स्तर से लोगों को उठाना, युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, हम लोग का लार्जर चीज़ ये है। उसका काम है, एक ही काम है कि आतंकवाद का फैक्ट्री बनाना। कहाँ से कहाँ गया वो कंट्री, देखिए ना, तो इसलिए दोनों को इक्वेट करने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्सियोम 04 मिशन स्थगित, शुभांशु शुक्ला की उड़ान पर लगा ब्रेक। एक्सियोम स्पेस के चौथे निजी अंतरिक्ष मिशन AX4 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस मिशन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस मिशन का हिस्सा बनने जा रहे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सुबह करीब 6 बजे हमें बताया गया कि मिशन स्थगित कर दिया गया है। हम अगली तारीख के बारे में नहीं बताया गया है। हम मानसिक रूप से तैयार हैं और बस अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे से हाल ही में बात की और शुभांशु ने कहा कि वे पूरी तरह फिट और मिशन के लिए तैयार है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम के इस मिशन में शामिल किया गया है, जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की ओर रवाना होगा। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है, क्योंकि निजी अंतरिक्ष अभियानों में भारतीयों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अपडेट ये है कि उसकी तैयारी है, इसके लिए मिशन के लिए जाने की तैयारी है, और मिशन द्वारा भी मतलब उसको अरेंज कर रहे हैं या उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। उनके द्वारा भी आज के लिए बताया गया था, पर अभी सभी सुबह जो है 6 बजे करीब मैसेज आया था कि मिशन आज के लिए जो है वो रोक दिया गया है। और अब कोई अगली डेट हमें भी नहीं पता है इसके बारे में, कब जाएगा तो ये तो उन्हीं के द्वारा क्लियर किया जाएगा। अभी हम लोग बस ये मेंटली कल से तैयार थे कि मतलब आज मिशन होगा, परंतु सुबह मैसेज के बाद आज मिशन रुक गया है, तो अगली डेट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। सर, विश्व भर की निगाहें हैं इस मिशन पर, सभी उत्साहित है, पूरा देश उत्साहित है, आप कितना उत्साह? हमें भी बहुत उत्साह है, हम पूरे परिवार को है, सभी को है, सगे संबंधियों को है कि मतलब इस मिशन को जल्दी से जल्दी जितना, अब जो डेट उनके द्वारा निर्धारित की जाएगी उसी में संभव होगा। और हम लोगों को पूरा उत्साह है, पूरा जो है मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि ये मिशन उसके द्वारा जल्दी जल्दी संपन्न हो, इसके लिए हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं।
सर अब आपकी बात कब हुई थी आपके साथ और क्या कितना उत्साहित वो नजर आ रहा है, क्या कैसे उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं? नहीं, वो बात हमारी कल हुई थी। वो पूरी तरह उत्साहित हैं, पूरी तरह मेंटली फिट हैं और मेंटली उनको मतलब जो है तैयार हैं उसके लिए। और पूरा मतलब ये जो बात हुई थी पूरी अच्छे माहौल में हुई थी, अच्छी तरह उन्होंने बात की और हम लोगों ने आशीर्वाद दिया और भगवान से प्रार्थना की कि उनको अच्छी तरह जो है मिशन को पूरा करने की शक्ति दे। तो उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोगों में भी कोई वैसी मतलब मेंटली पूरी तरह प्रिपेयर है। सर 2000 घंटे से ऊपर उन्होंने अब तक सफर किया है जहाज पर, और क्या कहेंगे उनके अनुभव को लेकर? अनुभव तो अपनी जगह है, अनुभव तो जितना उनको काफ़ी अनुभव है। और दूसरे उसमें सबसे बड़ी तो ये है कि किसी चीज़ को कठिनता से नहीं देखता, मतलब कोई चीज़ उसके लिए कठिन नहीं। उसका है कि हर चीज़ जो बड़ी चीज़ जो मिलती है वो मेहनत से मिलती है और मेहनत और लगन उसमें पूरी तरह समर्पण होना चाहिए, तभी संभव होगा। ये उसका हमेशा से ध्येय रहा और आज भी है उसका कि कोई बड़ी चीज़ अगर गेन करनी है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ा मतलब मेंटली फिजिकली सब तरह से उसमें जो है अपना पूरा योगदान देना पड़ेगा, तब वो संभव होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू। प्रवेश शर्मा की अपील, अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाइए। दिल्ली में पर्यावरण और भावनात्मक जुड़ाव को साथ लाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम। इस अभियान को लेकर दिल्ली के मंत्री प्रवेश शर्मा ने कहा, मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि वे अपने नज़दीकी पार्क में जाकर अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाएं। ये एक भावनात्मक और पर्यावरणिक कर्तव्य दोनों है। इसी के साथ ही उन्होंने राजधानी में बढ़ते जल संकट की चिंता पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि सभी घरों तक पानी पहुंचे। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पानी की मांग अब बढ़ गई है और इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ समय लगेगा। शर्मा ने भरोसा दिलाया कि हमारे अधिकारी निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी पानी की कमी न हो। गंदे पानी की समस्या पर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। अंत में उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज पर जोर देते हुए दावा किया, हमारी सरकार ने सिर्फ 100 दिनों में वो काम किए हैं जो पिछले सरकार 10 साल से नहीं कर पाई। और प्रधानमंत्री के साथ अब कदम ताल होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सारे देश को मैसेज दिया था कि देश को साफ रखिए, साफ सफाई रखिए, कूड़ा मत फैलाइए, और उसके बाद में जन जागरण एक शुरू हो गया था। ऐसे पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम शुरू किया पर्यावरण दिवस पर 5 जून को, तो 5 महीने के अंदर ही पूरे देश में 100 करोड़ पेड़ लगा दिए गए। इस साल भी दिल्ली सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है और हमारी भी ये है कि पूरे दिल्ली में हम इतने पेड़ लगाएं कि दिल्ली की जो गर्मी है वो भी थोड़ी सी कम हो, दिल्ली का तापमान भी थोड़ा कम हो और दिल्ली वासियों को राहत मिले। इसी दिशा में दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया है, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर अपने आसपास के पार्कों में वहाँ पर अपने हाथों से लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए, ताकि वो बड़ा होगा तो कहीं पर फल देगा, कहीं पर छाया देगा, बाद में लकड़ी भी देगा। तो इसके लिए हमको एक पूरा जन जागरण शुरू करना चाहिए। दिल्ली में सर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, समर एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने जारी किया था, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? लोगों को भी एडवाइजरी है कि वो 10 से 4 के वक्त धूप में ना निकले, एल्डरली और खासतौर पे बच्चे। देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट द्वारा जो हमने आज से 2 महीना पहले दिल्ली समर एक्शन प्लान को जारी किया था, उसके दौरान में काम हुआ है, फंड का आवंटन हुआ है, बहुत सारे टेंडर हुए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर हमने प्याऊ बनाए हैं और पानी का भी एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो, सभी घरों में, कॉलोनी में, गांव में पानी पहुंचे, उसके लिए भी हमने कदम उठाए हैं। इसको और अच्छा करने में और आपको बदलाव दिखने में थोड़ा सा समय लगेगा।
हम अगले साल तक, क्योंकि अभी हमें केवल 100 दिन हुए हैं, मगर अगले साल तक जितने कार्यक्रम हमने कर दिए, जितने टेंडर हमने कर दिए हैं, उसको होने में थोड़ा समय लगेगा, मगर अगले साल तक और हम सारे दिल्ली वासियों को राहत दे पाएंगे। सर, पानी की क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर इस समय? देखिए, पानी की डिमांड अभी हमारी बढ़ गई है, मगर हमारे टैंकर, हमारा जो पूरा वाटर मैनेजमेंट है, हमारे सारे अधिकारी उसको निगरानी कर रहे हैं, कहीं पर भी पानी की कमी ना हो। बहुत सारी जगह पर गंदे पानी की भी समस्या है, तो जो उनके नीचे की वाटर लाइन है उसको चेंज करने की बात है। तो हमारी तरफ से जो काम आज तक इससे पहले की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा काम हमने 100 दिन में हमारी योजना में करके दिखाया है और अभी उसको ग्राउंड पे लाने की बात है। सर, हरियाणा काउंटर पार्ट से आपने गुजारिश की थी कि यमुना के अंदर ट्रीटेड वाटर ही सिर्फ डालें, उसको लेकर कोई डेवलपमेंट था ताकि यमुना की एक होलिस्टिक अप्रोच में सफाई हो सके? बिल्कुल, उसके ऊपर में काम चल रहा है। सर, 2000 करोड़ का जो घोटाला था क्लासरूम का, मनीष सिसोदिया एसीबी के सम्मन के ऊपर नहीं आए हैं, तो सेकंड सम्मन अब जारी हुआ है, जबकि 5 जून को सत्येंद्र जैन। देखिए, मैं उन सबसे कहूँगा, अगर वो ये बात को बार बार कहते आए हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, तो आपको इंक्वायरी को ज्वाइन करना चाहिए, आपको अपनी बात को सामने रखना चाहिए और हमारा जो उसमें अनियमितताएं हैं, हमारा डिपार्टमेंट उसको अपनी बात को रखेगा और उसके बाद में जो कोर्ट फैसला करेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़। आरोपी राज कुशवाहा की बहन बोली, मेरा भाई निर्दोष है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी राज कुशवाहा को लेकर अब उसका परिवार भी सामने आ गया है। राज की बहन सुहानी कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में गंभीर सवाल उठाए हैं और अपने भाई के लिए न्याय की मांग की है। सुहानी ने कहा, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, उसे न्याय मिलना चाहिए, हमने रविवार से उसे नहीं देखा है। उन्होंने बताया कि परिवार क्राइम ब्रांच के पास गया था, लेकिन हमें उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। राज और सोनम रघुवंशी के बीच किसी संबंध की बात को खारिज करते हुए सुहानी ने कहा, मेरे भाई ने कभी सोनम रघुवंशी के बारे में बात तक नहीं की। उन्होंने भावुक होते हुए बताया कि राज ने अपने पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी। राज ने 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन पापा के निधन के बाद उसने पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसी ने हम सभी की देखभाल की है। उन्होंने ये भी बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे मेघालय नहीं जा पाएंगे, जहां राज को ले जाया गया है। आपके जो भाई हैं उनको पुलिस जो है मेघालय लेकर गई है, वहाँ से मांग पूछताछ करेंगे, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, कि क्या चाह रहे हैं? क्या हमारे भाई को न्याय मिले, उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दें। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है। संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। कहाँ गए थे? क्राइम ब्रांच गए थे, हम और मम्मी गए थे, तो बोला कि दूर से दिखा दो हम लोगों को, तो उन लोगों ने बोला कि दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को, नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाओ। नहीं देखने दिया? नहीं। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? आपकी 12th हो गया है। तो अब आप भाई के लिए क्या वहाँ जाओ, कोर्ट में? ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब कभी किया ही नहीं, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। भाई साहब की आखिरी बात क्या हुई? संडे के दिन भैया आए थे तो बस ये बोला कि सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे, मेरे को मंदिर जाना है, बस। उसके बाद भैया चले गए। फोन लगाया होगा जब तो उसके उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, सब लोगों को लगाया, सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद मम्मी को फोन किया, उन्होंने बताया, विशाल भाई की मम्मी को फोन किया। मैंने उनसे बोला पड़ोसियों से पूछो कि घर में वो लोग हैं कि नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि घर में ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है घर में। उसके बाद फिर मैं लगातार वो जो ऑफिस के भैया उनको फोन लगा रही थी कि भैया मेरे भैया नहीं मिल रहे हैं। वो बोल रहे थे मिल जाएगा, उसने कुछ नहीं किया है, बाद में 3-4 बजे पता चला कि उसको पुलिस लेके गई। आप मतलब
अपने भाई के बाद आप सबसे बड़ी बेटी हैं और उसकी सबसे मतलब छोटी बहन है, तो आपसे कभी जिक्र किया कि वो किससे प्यार करते हैं, किससे सोनम कौन है, क्या है, ऐसा कभी आपको लगा? क्योंकि जो चल रहा है कि शायद सोनम से उनका रिलेशन। नहीं, इसके बारे में भैया ने कभी बात नहीं करी। दीदी के बारे में तो उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं करी घर में। हमेशा जब भी बात होती थी तो हम 4 भाई बहन है, तो हमारी दीदी सबसे बड़ी है, भैया से बड़ी है, तो बात होती थी तो यही होती थी कि पहले तीनों बहनों की शादी करेंगे, फिर लास्ट में भैया अपनी शादी करेंगे। कभी उनने ऐसी बात नहीं करी कि मेरी शादी करो, कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी। तो आपकी बड़ी बहन क्या करती है? मेरी बड़ी बहन इस बार उसका एमए फाइनल हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया है, वो आ रही है यहाँ पे। आप भी मतलब 12th पास करने आप भी कॉलेज में जा रही हैं? जाने वाली थी, पर अब तो मेरा भैया आ जाएगा तो हमारे लिए, हम यहाँ से चले जाएंगे फिर। कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा आप वही एक टेंशन होगी, क्योंकि जो कमाने वाला था वही सब कुछ करते थे। सब कुछ भैया ही करते थे 5 सालों से, जब से हमारे पापा नहीं है तब से सब कुछ भैया संभालते थे। अच्छा, पापा की जाने के बाद हाँ। भैया ने खुद की पढ़ाई नहीं? भैया ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी, बस वो 10th पास आउट हुए थे, उनका रिजल्ट भी नहीं आया था, तभी पापा के साथ ऐसा हो गया था। उसके बाद भैया ने कभी पढ़ाई नहीं करी, वो बस हमारे लिए ही करते थे। वो अपने बर्थडे पे कभी कपड़े नहीं खरीदते थे, बस अभी 2 बार उन्होंने अपने बर्थडे पे कपड़े लिए थे, वरना कभी वो अपने बर्थडे पे भी कुछ नहीं खरीदते थे, बस हमारे लिए ही करते थे 5 सालों से। इसलिए तो भरोसा नहीं हो रहा कि वो कभी ऐसा कर सकते। अब आप लोगों ने क्या सोचा? आप क्या करेंगे? मेघालय जाएंगे क्या आप वहाँ पर? हम मेघालय कैसे जाएंगे, इतनी दूर, हमको तो कुछ उसके बारे में पता भी नहीं है। अभी आप इसीलिए कल गए थे ताकि उसको एक बार तो देख पाए वहाँ ले जाने से पहले, लेकिन उन लोगों ने नहीं देखने दिया। जो और लोग हैं जैसे आकाश विकेन को हाँ, विशाल भैया भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई, उनकी मम्मी भी वहाँ पे पागल हो रही है, तड़प रही है उनसे देखने के लिए, लेकिन सब लोग उनको गलत बोल रहे। क्या मांग करोगे बेटा? कि वो लोग बेकसूर हो तो उनको न्याय मिले, उन लोगों को छोड़ दिया जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कालकाजी में झुग्गियों पर चला बुलडोजर, अतिशी का आरोप, रेखा गुप्ता ने झूठ बोला। दिल्ली के कालकाजी इलाके में चल रहे तोड़फोड़ अभियान पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, 3 दिन पहले रेखा गुप्ता ने कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन आज सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहे हैं। लोग अपने घरों से जबरन निकालने जा रहे हैं और पुलिस लाठियां चला रही है। अतिशी ने कोर्ट के आदेश को लेकर भी सवाल उठाए। रेखा गुप्ता कहती है ये कोर्ट का आदेश है, लेकिन कोर्ट में गया कौन? भाजपा की डीडीए और खुद भाजपा गई थी। गरीब लोग कोर्ट गए थे घर मांगने, लेकिन भाजपा डीडीए ने उनके खिलाफ खड़े होकर कहा कि घर नहीं देंगे और तोड़फोड़ की मंजूरी मांगी। उन्होंने भाजपा को गरीबी विरोध करार देते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि भाजपा गरीबों के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ खड़ी होती है। इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया है। वहीं प्रभावित परिवार बेघर होने की कगार पर है और प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। ये गरीब लोग कोर्ट गए और भाजपा की डीडीए, भाजपा की दिल्ली सरकार, भाजपा की डूसिप ने वहां खड़ा होकर इन गरीबों का विरोध किया, कहा कि हम इन्हें घर नहीं देंगे और कोर्ट को कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ दी जाए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जाति और पार्टी नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, बोले प्रशांत किशोर। जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की राजधानी और नेताओं पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा, आप सभी को संकल्प लेना होगा कि आप उन राजनेताओं को वोट नहीं देंगे जिन्होंने बिहार और आपके बच्चों के भविष्य को लूटा है। प्रशांत किशोर ने वोट खरीदने की राजनीति को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, अगर कोई राजनेता आपको पैसे देता है तो उसे इस तरह से ले जैसे वो पैसे उसने आपसे ही चुराए है। ये आपका ही लूटा हुआ धन है। जनता से जाति और पार्टी आधिकारिक वोटिंग से ऊपर उठने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, अगली बार आपको किसी राजनीतिक पार्टी, किसी जाति या नेता को वोट देना नहीं है, आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना है। प्रशांत किशोर का ये बयान भाषण नहीं, सिर्फ विकास की राजनीति की ओर इशारा करता है, बल्कि बिहार में नई राजनीतिक चेतना के प्रयास का भी हिस्सा माना जा रहा है। कैसे बदली, इसीलिए ये रास्ता सिखा रहे हैं। अब सब लोग इससे निकलने का रास्ता सीखेगा। 2 संकल्प सबको लेना है। पहला संकल्प, एक बार सब लोग ध्यान से सुनिए, जिन नेताओं ने आपके बिहार को, आपके बच्चों के भविष्य को लूटा है, जिन लोगों ने बिहार को, जे लोग सब, जितना नेता सब बिहार के लुटले बारन, जिन लोगों ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, वो चाहे आपके दल का हो या जात का, गांव का हो या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। तो पहला रास्ता क्या है? हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। सब आदमी को दोनों हाथ उठाना है। एक एक आदमी के हाथ उठावे के बाद बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोले के बाद, झूठ नहीं के बोले के। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। आपके जात का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अरे भाई 1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो दोगे कि नहीं दोगे। नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। अरे भाई सीख लो, पैसा देगा, 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। हम बताते हैं क्यों लेना है, पूरा सीख कर जाइए। अब यही आपके काम का बात है। नेता आकर पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है आप बताइए। 5 बरस में राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है। सबको बोलना है, राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है। राशन कार्ड बनाने में घूस लागल बा कि नहीं लागल। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। थाना में FIR करने जाते हैं तो घूस लगता है कि नहीं लगता है। बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घरे घर शराब बिचवा रहा है कि नहीं बिचवा रहा है। पुरुष लोग चुप होइए, खाली महिला बताएंगी। गांवे गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। शराब बिकता है कि नहीं बिकत। दाखिल खारिज में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। CO BDO ने लूटा है कि नहीं लूटा है। जोर से बताओ भाई, दाखिल खारिज में CO BDO का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इंदिरा आवास का भी पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है घूस। अरे तो हम ही लोग का पैसा लूट के रखा है, और उसमें से 1000 रुपया ला के देगा तो हम लोग वापस नहीं लेंगे, ले लेंगे। पैसा लेना है क्योंकि आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र, गरीबी से निकलने का मंत्र सीखना है और उसी को याद रखना है। अगली बार वोट, अगला बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, सिलेंडर के लिए नहीं, जाति और बिजली पानी के लिए नहीं। अगली बार वोट लालू नीतीश मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं। अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है। ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर संकल्प लेना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवा पुलिस ने लॉन्च किया स्टॉप द स्कैम टूल।
गोवा राज्य की साइबर सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए गोवा पुलिस ने 2 अत्याधुनिक डिजिटल टूल्स की शुरुआत की है। डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि इन पहलों का शुभारंभ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया। पहला टूल है स्टॉप द स्कैम, जो आम जनता के लिए उपलब्ध है। डीजीपी आलोक कुमार के मुताबिक ये एक बहुत ही प्रभावी टूल है जिसे ब्रिटिश पिलानी के छात्रों ने विकसित किया है। इसके जरिए यूजर्स कुछ ही सेकंड में ये जान सकते हैं कि कोई वेबसाइट असली है या फर्जी। ये टूल अब गोवा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। दूसरी पहल है रेडिकल कंटेंट एनालाइजर, जो एक आंतरिक निगरानी उपकरण है। डीजीपी ने बताया, इस टूल के जरिए हम सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट में धार्मिक कट्टरवाद, हिंसा और आक्रामकता से जुड़े संकेतों की पहचान बेहद कम समय में कर सकते हैं। ये एक उत्पन्न सॉफ्टवेयर आधिकारिक सिस्टम है। हालांकि ये टूल सिर्फ पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए उपलब्ध है और आम जनता की पहुंच में नहीं होगा। ये दोनों टूल्स गोवा के साइबर फ्रॉड और सामाजिक तत्वों से बचाने में प्रभावी हथियार बन सकते हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोवा ने गोवा पुलिस के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसमें पहला इनिशिएटिव स्पॉट द स्कैम है, जो गोवा पुलिस के वेबसाइट पे ये टूल अवेलेबल है। हम लोगों को अक्सर ये सुनने में आता है और ये रिपोर्ट होती है कि अगर आप किसी टूर एंड ट्रैवल वैकेशन पे जाना चाहते हैं और किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, कई बार ये धोखा आपके साथ हो जाता है कि वो वेबसाइट जेन्युइन नहीं होती है, फेक होती है और वहाँ पर आप कुछ एडवांस अमाउंट पे कर देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि जिस फ़ोन नंबर पे आपने कांटेक्ट किया वो फ़ोन नंबर बंद हो जाता है। और इस तरह की धोखाधड़ी के कई सारे रैकेट्स का पर्दाफाश गोवा पुलिस ने भी किया है और बाकी जगहों पर भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं। यहाँ से क्यू लेकर और 2023 डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के हैकाथन से क्यू लेकर हम लोगों ने 2024 में बिट्स पिलानी के साथ एक हैकाथन किया और उसमें हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी वेबसाइट पे हमें किसी भी किस्म का ट्रांजैक्शन करना है तो उसको हम कैसे जांच सकते हैं कि ये फेक है और या जेन्युइन है। और इसके ही इस सवाल के जवाब में एक बहुत ही अच्छा टूल, बहुत ही इफेक्टिव टूल बिट्स पिलानी के बच्चों ने बनाया है और इसका कोई कॉस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बियर करना पड़ा है। उस हैकाथन के दरमियान ही ये टूल डेवलप किया गया है, जो कि अभी गोवा पुलिस और गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे ये टूल अवेलेबल है। तो गोवा के ही नहीं, बाकी हिंदुस्तान के भी सिटीजन्स या बाकी दूसरी कंट्री के भी सिटीजन्स अगर किसी भी किस्म का ट्रांजैक्शन किसी भी वेबसाइट पे करना चाहते हैं, किसी भी तरह का एक्शन किसी वेबसाइट के माध्यम से करना चाहते हैं, चाहे वो होटल की बुकिंग हो या इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वो इस टूल का इस्तेमाल करके इस टूल पे जब आप जाते हैं तो आपको जो वेबसाइट जिसको आप जांच करना चाहते हैं उसको उस वेबसाइट को अगर यूआरएल को इस टूल पे आप डालेंगे तो आपको कुछ ही सेकंडों में पता चल जाएगा कि क्या ये वेबसाइट फेक है या जेन्युइन है। इस तरह से ये एक छोटा सा और बेसिक टूल बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, जिससे किसी भी किस्म के फ्रॉड से किसी वेबसाइट को की जो सत्यता है उसको जांच कर परख कर और सिटीजन उस फ्रॉड से बच सकते हैं। न केवल गोवा के सिटीजन्स बल्कि हिंदुस्तान के बाकी सिटीजन्स और भी बाकी किसी और कंट्री के सिटीजन्स इसको यूज कर सकते हैं। इट इज फ्री टू यूज और इस तरीके से ये एक सिंपल बहुत ही इफेक्टिव एक टूल है जिसका आज माननीय सीएम गोवा श्री प्रमोद सावंत जी ने उद्घाटन किया है। एक दूसरा इनिशिएटिव जो गोवा पुलिस ने लिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए अवेलेबल है, वो ये भी 2023 के डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी उसको आधार बनाकर 2024 के हैकाथन में हम लोगों ने रेडिकल कंटेंट एनालाइजर डेवलप करने के लिए बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स के साथ काम करना शुरू किया। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि आज माननीय सीएम गोवा ने उसका भी उद्घाटन किया है, इसको भी हमने जांचा परखा है। और इसमें क्या है कि अगर कोई भी रेडिकल कंटेंट जो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, अक्सर उसको अगर हम मैनुअली चेक करें तो उसमें बहुत सारा समय लगता है।
इसीलिए इस टूल के माध्यम से हम बहुत कम समय में ये देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट है इसमें जिहादी एलिमेंट तो नहीं है, किसी तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात तो नहीं है, किसी तरह के मॉब वायलेंस और एग्रेशन की बात तो नहीं है। और ये सारी जांच जो है बहुत शीघ्र ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा सकती है। लेकिन ये टूल आम सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए अवेलेबल है। और इन दोनों ही टूल्स के लॉन्च करने के साथ ही गोवा पुलिस टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के अपने ड्राइव में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन में हम लोग काफ़ी अव्वल हैं। धन्यवाद। ये इस तरह का ऐप जहाँ तक मुझे मालूम है, ये दोनों ही ऐप अभी गोवा पुलिस शायद देश की पहली पुलिस है जिन्होंने ये टूल अवेलेबल किया है। टूरिज्म स्टेट में और लोकल को कितना बेनिफिट होएगा सर ये डेफिनेटली वो तमाम लोग जो गोवा विजिट करना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। और इसीलिए गोवा टूरिज्म ने भी अपने वेबसाइट पे इस टूल को जगह दी है और गोवा आने से पहले इस वेबसाइट के माध्यम से, इस टूल के माध्यम से किसी भी वेबसाइट की सत्यता को जांचा जा सकता है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।